Hi friends, welcome to the video in which our topic is the concept of poverty and magnitudes or levels of poverty in India. So let's begin with the concept of poverty. Friends, poverty is an economic problem. It is a problem which indicates the situation in a country or society or economy in which a person, a household or a family is unable to fulfill basic needs or necessities of life like food, clothing and shelter. Right? So it is a precarious situation. It is a worrisome situation for the economy as a whole, for the country as a whole, where some people, some families, some persons are unable to fulfill the basic needs or necessities of life. It indicates a situation of scarcity indirectly. So now let us come on to the meaning of poverty. The meaning of poverty is or can be looked at from two angles. One is traditional meaning of poverty and the other is modern meaning of poverty. According to traditional meaning of poverty, the important focus or the aspect or emphasis in traditional concept is given on income level of a person or a household or a family, right? So the poverty which is judged or determined on the basis of income level is called traditional concept of poverty. पुराने वक्त में ट्रेडिशनल मतलब सिंस ओल्ड एज, समथिंग विच इज कमिंग ट्रेडिशनली सिंस ओल्ड एज, पुराने वक्त से कोई चीज चली आ रही है उसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं. तो ट्रेडिशनली पॉवर्टी को हम इनकम लेवल से कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे, राइट? सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वी डिटरमाइन ए पॉवर्टी लाइन. Remember, poverty line is not any geometrical line, but a poverty line is a phrase or word which is used for a certain minimum level of per capita consumption or expenditure. Consumption and expenditure are two sides of the one single coin. So, poverty line means a certain minimum level of per capita consumption or expenditure required to fulfill minimum basic needs is called poverty line, right? Or in still simple words, अगर इसे और हम simple words में कहें तो poverty line means estimated minimum level of income needed to fulfill basic necessities of life. इंसान की जिंदगी की बेसिक जरूरतों को पूरी करने के लिए जो एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, कम से कम इनकम का जो लेवल चाहिए, इतनी इनकम का लेवल जिससे बेसिक जरूरतें हमारी पूरी हो सके. और बेसिक जरूरतों में हम मेनली ट्रेडिशनली पुराने वक्त से हम तीन चीजें इंक्लूड करते थे और वो है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो ये एक ऐसा मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन हम डिसाइड करते हैं, उसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं. नाउ all those persons in the society, country or economy having income below this particular level, we call it poverty line, will be called poor. And all those having income above this particular level, we call it poverty line, they will be called APL, above poverty line, means non-poor. And those who are BPL, below poverty line, will be called poor according to traditional concept of poverty. Okay, so that is about poverty meaning of from traditional angle. Okay, now in modern times economists and some experts of economics, we call them economics gurus, have added, according to modern concept of poverty, it will be not appropriate
to judge any person, any family or any group of people poor only on the basis of one criteria called income. सिर्फ इनकम को कंपेयर करके, सिर्फ इनकम को बेस में रख के किसी को पुअर या नॉन पुअर कहना इतना ठीक नहीं है, ऐसा मॉडर्न कंसेप्ट में कहा गया। तो फिर मॉडर्न कंसेप्ट में हम और क्या इंक्लूड करते हैं while judging poverty, while determining poverty? तो कहते हैं कि इन मॉडर्न कंसेप्ट इनकम तो हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में कुछ और एस्पेक्ट्स, कुछ और फैक्टर्स भी हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। इंसान को इकोनॉमिक एक्टिविटी चूज करने की लाइफ में कितनी फ्रीडम है। कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी दिस फ्रीडम लेवल डिफर्स, वो अलग अलग होता है, ठीक है। मोर द फ्रीडम लेस द पॉवर्टी, लेस द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन देन मोर द पॉवर्टी। जहां फ्रीडम कम हो वहां पॉवर्टी हाई कहलाएगी, राइट। यानी इंसान इतना गरीब कि उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी चूज करने की भी फ्रीडम नहीं। सम अदर फैक्टर्स लाइक एजुकेशन लेवल, कंट्री में एजुकेशन का लेवल कितना है, समाज में, सोसाइटी में, लोगों में एजुकेशन का लेवल कितना है। द मोर द लेवल ऑफ एजुकेशन द लेस द पॉवर्टी, द लेस द लेवल ऑफ एजुकेशन द मोर द पॉवर्टी। Long and healthy life, what is the quality of life of people as far as longevity and health is concerned? The more the long and healthy life, the less the poverty and vice versa. Standard of life, standard of living of people, self respect and dignity लोगों की सोसाइटी में कैसी है, कंट्री में कैसी है, ये सब फैक्टर्स भी हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी में कंसीडर करते हैं। और कंक्लूड करते हुए हम पॉवर्टी के मीनिंग को, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी को कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे आपको कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम का प्रोग्राम चलाती है सालों से। उसके अंदर में एचडीआई और एचपीआई कैलकुलेट होते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर कंडक्ट्स ए सर्वे अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके अंदर वो लोग एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड एचपीआई, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये कैलकुलेट करते हैं पूरी दुनिया की कंट्रियों में, और उसका सर्वे करके वो डिक्लेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं उसकी रिपोर्ट्स। तो उसमें 3 बड़े फैक्टर कंसीडर होते हैं, राइट। उसमें है नंबर 1 एजुकेशन, लेवल ऑफ लिटरेसी, लेवल ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री और सोसाइटी। नंबर 2 health and hygiene conditions in the country or society, दूसरा factor, while judging or determining HDI and HPI. And third criteria, standard of living of people in the country or society. यानी मॉडर्न कंसेप्ट में अब हम ये सब बातें भी लेवल ऑफ इनकम के साथ साथ पॉवर्टी में इंक्लूड करते हैं। तो आई होप दैट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीनिंग ऑफ और कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी आर क्लियर नाउ। लेकिन याद रहे अभी हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की ही खाली बात की है, रिलेटिव पॉवर्टी की बात मैं एक अलग ब्रीफ वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगा बाद में। चलो अब आज के वीडियो में एक और 2 टेबल हमने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। पहला टेबल है इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कंडक्ट कराता है इकोनॉमिक सर्वेज इन इंडिया। तो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 इंडिया में जो कंडक्ट हुआ, वो सर्वे के अंदर इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल्स, मैग्नीट्यूड, वॉल्यूम, ये टेबल में बताए गए हैं। इंडिया में पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया रीजनली, रूरल एरियाज, गांवों के इलाकों में, और अर्बन एरियाज, शहरों के इलाकों में। 2004-5 के साथ हम 11-12 को कंपेयर करेंगे। तो 2004-5 में परसेंटेज में ये फिगर दी गई है। 2004-5 में रूरल एरियाओं में इंडिया में 41.8% ऑफ पॉवर्टी एब्सोल्यूट पाई गई, यानी कि वेरी हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी वाज फाउंड। सोसाइटी के, कंट्री के टोटल लोगों में 41.8% पीपल वेर फाउंड
पुअर, एब्सोल्युटली पुअर इन रूरल एरियाज। लेकिन 2011-12 के साल में फिर ये पॉवर्टी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, social developmental programs, improvement in education level, improvement in health and hygiene level, improvement in standard of living, improvement in infrastructural facilities in the country, and all multi-dimensional जो economic changes आए इकोनॉमी में, उसकी वजह से पॉवर्टी रूरल एरियाओं में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई। एंड होपफुली अभी तो 2020 चल रहा है, तो ये और रिड्यूस होने की प्रोसेस में होगी, राइट। इन अर्बन एरियाज, शहरों में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रूरल एरियाज में एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज्यादा पाई गई कंपेयर टू अर्बन एरियाज, क्योंकि हमको पता है कि रूरल एरियाज आर ओनली डोमिनेटेड विथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, राइट। रूरल इकोनॉमीज आर एग्री ओरिएंटेड इकोनॉमीज, वहां इंडस्ट्रियां नहीं है, सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली अर्बन एरियाओं में जो पॉवर्टी है वो रूरल एरियाओं की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंटली लो है। 25.7% की पॉवर्टी 2004-05 में पाई गई, और ये भी सिग्निफिकेंटली ऑलमोस्ट हाफ के लेवल पर आई है। 13.7 इट वाज फाउंड इन, और ये जो टोटल फिगर है ये ऑल ओवरऑल पॉवर्टी इंडिया लेवल पर रूरल और अर्बन कंबाइन करके हमने अगर अपने सर्वे करें तो 37.2, અને 2011 में ये रिड्यूस होकर 21.9% के लेवल पर आई। यानी कंक्लूड हम ये कर सकते हैं ये टेबल को कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल्स आर सिग्निफिकेंटली ड्रॉपिंग इन इंडिया, बोथ इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। ओके, और आज की वीडियो की लास्ट जो टेबल है कंक्लूड करते हुए हम ये बताएंगे कि यही इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में जो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया, और उसमें स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड और लेवल और वॉल्यूम ऑफ पॉवर्टी भी बताए गए हैं। तो स्टेट वाइज वॉल्यूम ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी मतलब कि इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है या थी। तो ये 2011-12 की फिगर है आगे। तो बिलो 10% पॉवर्टी यानी लीस्ट पॉवर्टी, out of total population only 10% or less people who were जो states में पाए गए, वो states की यहाँ लिस्ट है which I will read out little later. Then 10% those states of India where poverty was found above 10% but up to 20%, 10 से 20% लोग गरीब पाए गए हों, ऐसे स्टेट्स इंडिया के कितने 2011-12 में, उसकी हमारे पास ये सर्वे के अंदर लिस्ट है। देन 20 to 30% पॉवर्टी, यानी ग्रेजुअली हम पॉवर्टी के लेवल हाई की ओर जा रहे हैं, ऐसे स्टेट्स जहां गरीबी ज्यादा पाई गई। तो 20% से ज्यादा लेकिन 30% परसेंटेज तक जो स्टेट में लोग गरीब पाए गए, वो स्टेट के लिस्ट में भी बोल रहा हूं। मैंने 30% से 40% यानी इंडिया के जो हाईली पुअर पॉपुलेशन वाले लोग, पॉपुलेशन वाले स्टेट्स कितने, उसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ है। तो मैं शुरू करूं, कम से कम पॉवर्टी वाले स्टेट्स इंडिया में जो 10% और बिलो पॉवर्टी वाले स्टेट हैं इंडिया में 2011-12 में जो पाए गए थे, वो थे गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इतने स्टेट बिलो 10% पॉवर्टी वाले हैं, यानी यहाँ इंडिया के अदर स्टेट्स के मुकाबले बहुत कम पॉवर्टी पाई गई, राइट। यानी प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा पाई गई। चलो अब नेक्स्ट डिग्री के स्टेट पर अगर हम आए, 10 to 20% पॉवर्टी वाले स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ये स्टेट्स में ये पहले वाली कैटेगरी से ज्यादा पॉवर्टी, लेकिन नीचे के जो स्टेट हैं उससे कम पॉवर्टी पाई गई। चलो 20% to 30% पॉवर्टी वाले जहां पाई गई, यानी 20% से 30% लोग जहां गरीब पाए गए टोटल आबादी में, ऐसे स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश पाए गए। और हाईएस्ट पॉवर्टी वाले जो इंडिया के स्टेट्स हैं जहां 30% से 40% आबादी स्टेट में से गरीब पाई गई हो, ऐसे स्टेट्स के नाम है मध्य प्रदेश, असम,
ओडिशा, बिहार, राइट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो इतने स्टेट में हमने हाईएस्ट पॉवर्टी इंडिया में 2011-12 के ईयर में पाई गई एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2015-16। ओके, सो फ्रेंड, हियर वी कंक्लूड today's video of poverty and magnitude or levels of absolute poverty in India. Thank you and bye.